السلام علیکم، پروگرام ہے چائنا ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے اشتراک سے پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ہفتے بھی ہم چین کی مختلف میدانوں میں ترقی کا جائزہ لیں گے۔ اس حوالے سے مختلف رپورٹس پروگرام میں شامل ہیں، تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ چین میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے حامل کاروباری اداروں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ رواں سال 31,600 سے زائد غیر ملکی سرمایہ کاری والے ادارے کھولے گئے۔ سال کے آغاز سے اب تک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 539 ارب یوان سے زائد رہی۔ چین کی وزارت تجارت کے اعداد و شمار کے مطابق 2024 کے پہلے 7 ماہ میں چین میں نئے قائم کردہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے حامل کاروباری اداروں کی تعداد میں سال بسال 11.4% اضافہ ہوا ہے۔ وزارت کے مطابق جنوری سے جولائی کے دوران ملک بھر میں مجموعی طور پر 31,654 غیر ملکی سرمایہ کاری والے ادارے قائم کیے گئے۔ اس عرصے کے دوران فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 539.47 ارب یوان رہی، جس میں مینوفیکچرنگ کے شعبے میں 154.48 ارب یوان شامل تھے۔ میڈیکل آلات اور ساز و سامان کی مینوفیکچرنگ اور پیشہ ورانہ تکنیکی خدمات میں FDI میں سال بہ سال بالترتیب 87% اور 41.3% اضافہ ہوا۔ چین کی معیشت نے جولائی میں بھی اپنی مستحکم ترقی جاری رکھی۔ مارکیٹ اداروں کے متعدد شعبوں میں مثبت اشاریے سامنے آئے۔ صنعتی اداروں کی سیلز آمدنی میں جولائی میں 6% سالانہ اضافہ ہوا۔ چین کی اسٹیٹ ٹیکسیشن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے اتوار کو جاری کردہ ٹیکس اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک کی معیشت نے جولائی میں اپنی مستحکم ترقی جاری رکھی۔ مارکیٹ اداروں کی سیلز آمدنی میں مسلسل بہتری آئی اور متعدد شعبوں میں مثبت اشاریے سامنے آئے۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس انوائس اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ صنعتی اداروں کی سیلز آمدنی میں جولائی میں سال بہ سال 6% اضافہ ہوا، جو دوسری سہمائی کے مقابلے میں 1.7% زیادہ ہے۔ یہ نمو خاص طور پر ہائی ٹیک صنعتوں میں واضح رہی، جس نے سیلز آمدنی میں سال بہ سال 13.3% اضافہ دیکھا۔ اسٹریٹجک ابھرتی ہوئی صنعتیں جیسے الیکٹرانک اور مواصلاتی آلات کی مینوفیکچرنگ، ریلوے، جہاز سازی اور ہوا بازی کے سامان کی مینوفیکچرنگ اور نئی توانائی کی گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ میں بالترتیب 12.1%، 14.6% اور 26.7% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ صنعت اور نقل و حمل جیسے اہم شعبوں میں ترقی خاص طور پر مضبوط رہی، جس میں بالترتیب 7.2% اور 14.8% کا اضافہ ہوا، جو دوسری سہمائی سے واضح تیزی کو ظاہر کرتا ہے۔ چین میں سبز پیداوار طرز زندگی کی تشکیل کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ سماجی ترقی کے تمام شعبوں میں سبز منتقلی کو تیز کرنے کے لیے گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں۔ ان میں مختلف شعبوں کے لیے مقداری کام کے اہداف بھی پیش کیے گئے ہیں۔ چین میں ماحولیاتی ترقی کے حصول کے لیے گردشی معیشت ملک میں سبز پیداوار اور طرز زندگی کی تشکیل کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی اور ریاستی کونسل نے چین میں اقتصادی اور سماجی ترقی کے تمام شعبوں میں سبز تبدیلی کو تیز کرنے کے لیے گائیڈ لائنز جاری کی ہیں۔ حال ہی میں جاری کردہ گائیڈ لائنز کے مطابق 2030 تک ملک معاشی اور معاشرتی ترقی کے تمام شعبوں میں سبز منتقلی میں قابل ذکر نتائج حاصل کرے گا اور 2035 تک ایک سبز، کم کاربن اور گردشی ترقی کا معاشی نظام بنیادی طور پر قائم ہو جائے گا اور خوبصورت چین کا ہدف بنیادی طور پر حاصل کر لیا جائے گا۔ گائیڈ لائنز میں مختلف شعبوں کے لیے مقداری کام کے اہداف بھی پیش کیے گئے ہیں۔ 2030 تک ملک میں توانائی کے تحفظ اور ماحولیاتی تحفظ کی صنعت کا پیمانہ تقریباً 15 ٹریلین یوان تک پہنچ جائے گا اور بلک سالڈ ویسٹ کا سالانہ استعمال تقریباً 4.5 بلین ٹن تک پہنچ جائے گا۔ شیزانگ خود اختیار علاقے کے لہاسا شہر میں سائنسی مہم کا آغاز ہو گیا۔ سائنسی مہم کا مقصد چنگائی شیزانگ سطح مرتفع کی تحقیقات کرنا ہے۔ سائنسی مہم کا ہدف ایک گلیشیئر، 2 جھیلیں اور 3 دریا ہیں۔ چین نے اتوار کے روز جنوب مغربی چین کے شیزانگ خود اختیار علاقے کے لہاسا شہر میں ایک سائنسی مہم کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد شنگھائی شیزانگ سطح مرتفع کی تحقیقات کرنا ہے، جسے ایشیا کا واٹر ٹاور کہا جاتا ہے۔ اس سائنسی مہم کا ہدف ایک گلیشیئر، 2 جھیلیں اور 3 دریا ہیں۔
گزشتہ 20 سالوں میں اس خطے میں آب و ہوا اور ماحولیات میں ٹھوس تبدیلیاں آئی ہیں۔ ان تبدیلیوں نے علاقائی ماحولیاتی نظام پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس مہم میں 15 بنیادی کام شامل ہیں جو 6 ٹیموں کے ذریعے انجام دیے جائیں گے، جن میں 400 سے زیادہ پیشہ ور افراد حصہ لیں گے۔ اس مہم میں شامل سائنسدان زمینی نظام کی سائنس پر جامع تحقیقات کریں گے، جس میں ایشیا کے واٹر ٹاور کے ماحولیاتی نظام اور کاربن سائیکلز کی تبدیلیوں کے اثرات، الپائن ماحول اور صحت، وسائل اور توانائی کے امکانات، ٹیکٹونک اور ماحولیاتی ارتقاء اور سبز اور پائیدار ترقی شامل ہیں۔ چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے ماہر تعلیم اور شنگھائی تبت سطح مرتفع پر دوسری سائنسی مہم کے سربراہ یاؤ تانگ نے کہا کہ ہماری ٹیم گزشتہ 20 سالوں میں اس گلیشیئر میں ہونے والی تبدیلیوں کی نئی تفہیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ چین کی جاولونگ نامی سی سبمرسیبل نے 300ویں ڈائیو مکمل کر لی۔ جاولونگ 7000 میٹر گہرائی تک جانے والی انسان بردار سبمرسیبل ہے۔ اس نے ماریانا ٹرینچ میں 7062 میٹر گہرائی تک جانے کا ریکارڈ بھی قائم کیا تھا۔ چین کی جاولونگ، جو ایک انسان بردار ڈیپ سی سبمرسیبل ہے، اس نے گزشتہ اتوار کو اپنی 300ویں ڈائیو مکمل کی۔ جاولونگ چین کی جانب سے پہلی آزادانہ طور پر تیار کردہ 7000 میٹر گہرائی تک جانے والی انسان بردار سبمرسیبل ہے، اور اس نے جون 2012 میں ماریانا ٹرینچ میں 7062 میٹر گہرائی تک جانے کا ریکارڈ قائم کیا تھا۔ جاولونگ ہفتے کے روز مغربی بحر الکاہل میں پہلے آپریٹنگ ایریے میں پہنچی اور اتوار کو مقررہ علاقے میں اپنی پہلی ڈائیو کی۔ جاولونگ 3 آپریٹنگ علاقوں میں مزید 17 ٹاسک مکمل کرے گی اور اس دوران زیر سمندر تحقیقات کی جائیں گی۔ ان تحقیقات کے لیے کینیڈا، اسپین اور کولمبیا سمیت مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے چینی اور غیر ملکی سائنسدانوں کا ایک گروپ 10 اگست کو مشرقی چین کے صوبہ شانڈونگ کے شہر چنگ ڈاؤ سے 45 روزہ سائنسی مہم کی انجام دہی کے لیے روانہ ہوا۔ اس مشن کا اہتمام وزارت قدرتی وسائل کے تحت چائنا اوشین منرل ریسورسز ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے کیا جاتا ہے اور اسے نیشنل ڈیپ سی سینٹر کے ذریعے نافذ کیا جاتا ہے۔ چین کی فوجیان میری ٹائم سیفٹی ایڈمنسٹریشن اور دونگھائی ریسکیو بیورو نے مشترکہ طور پہ گشت کیا۔ بحری گشت کا مقصد نیویگیشن آرڈر کو برقرار رکھنے اور سمندری حفاظت کو یقینی بنانا تھا۔ بحری کارروائی میں 3 چینی بحری جہازوں نے حصہ لیا۔ چین کی فوجیان میری ٹائم سیفٹی ایڈمنسٹریشن اور دونگھائی ریسکیو بیورو نے آبنائے تائیوان میں ہفتے اور اتوار کے درمیان 30 گھنٹے تک بحری گشت کیا تاکہ نیویگیشن آرڈر کو برقرار رکھا جا سکے اور سمندری حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کارروائی میں 3 چینی بحری جہازوں نے حصہ لیا۔ 30.5 گھنٹوں میں 413 ناٹیکل مائلز کے دوران اس فلیٹ نے ہائی رسک زونز کو کور کیا، جہاں تجارتی اور ماہی گیری کے جہاز اکثر آپس میں ٹکراتے ہیں اور حادثات کا خدشہ ہوتا ہے۔ سمندری خلاف ورزیوں پر کریک ڈاؤن کیا گیا، سخت نیویگیشن آرڈر نافذ کیا گیا اور اس اہم آبی گزرگاہ کی حفاظت کو یقینی بنایا گیا۔ ٹیم نے سمندری ٹریفک کے انتظام، گزرنے والے جہازوں کا معائنہ اور ہنگامی ریسکیو مشنز کی بھی ٹیسٹنگ کی۔ فلیٹ نے نیویگیشن آلات اور سمندری ریڈیو مواصلات کی اچھی کارکردگی کو بھی یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کی۔ آبنائے تائیوان چین کی ساحلی تجارت کے لیے ایک اہم لائف لائن ہے، جہاں روزانہ مختلف بحری جہازوں کی آمد و رفت ہوتی ہے جو ان پانیوں میں سفر کرتے ہیں۔ سنکیانگ ویگور کے صحرا میں سی فوڈ پروڈکشن نے اہم کامیابی حاصل کر لی۔ ماہی گیری کے فارم میں مختلف اقسام کی مچھلیاں اور سیپ کی افزائش کی جا رہی ہے۔ فارم میں 2 تالاب، 1 بریڈنگ پول اور 1 سمندری غذا کی پیداواری ورکشاپ شامل ہے۔ شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویگور خود اختیار علاقے کے صحرا تکل مکان میں ایک ماہی گیری کے فارم نے سی فوڈ پروڈکشن میں قابل ذکر کامیابی حاصل کی ہے، جہاں مختلف اقسام کی مچھلیاں اور سیپ کی افزائش کی جا رہی ہے۔ یہ فارم سمندری مچھلیوں کے لیے بہترین ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے آکسیجنیٹرز اور خودکار فیڈرز سمیت جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے۔ تقریباً 1.3 ہیکٹرز پر محیط اس فارم میں 2 تالاب، 1 بریڈنگ پول اور 1 سمندری غذا کی پیداوار کی ورکشاپ شامل ہے۔ فارم نے 3 ماہ کی تعمیر کے بعد جون میں کام شروع کیا تھا۔ ان تالابوں میں اس وقت تقریباً 1 لاکھ سمندری مچھلیاں موجود ہیں، جن میں گولڈن پومفریٹ، گروپر اور سی باس شامل ہیں۔ نیز 2 ملین سیپ اور دیگر آبی اقسام کی آزمائشی افزائش کی جا رہی ہے۔
یہ فوم صحرائی کھارے الکلائن پانی میں خاص طور پر تیار کردہ مائکرو آرگنزم شامل کر کے مچھلیوں کو سمندری ماحول فراہم کرتا ہے، جو ایکوا کلچر میں چین کی جانب سے ایک اہم جدت کی نشاندہی ہے۔ فوم پر خصوصی تکنیکی ماہرین مچھلیوں کی نشو و نما کی نگرانی کرتے ہیں اور ریگستان میں سی فوڈ کی کامیاب پروڈکشن کو یقینی بناتے ہیں۔ بحیرہ جنوبی چین میں ماہی گیری کا سیزن دوبارہ شروع ہو گیا۔ بحری جہاز پابندی ختم ہونے کے بعد پہلی بار مچھلی پکڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ بحیرہ جنوبی چین میں 3.5 ماہ کے وقفے کے بعد ماہی گیری کا سیزن دوبارہ شروع ہو چکا ہے اور 100 سے زائد بحری جہاز پابندی ختم ہونے کے بعد پہلی بار مچھلی پکڑنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے ایک شاندار تقریب کا آغاز گزشتہ جمعے کو جنوبی چین کے صوبہ گوانگتونگ کے شہر یانجیانگ میں ہوا۔ 3 اطراف سے سمندر میں گھرا ہوا اور 2000 کلومیٹر سے زیادہ کی ساحلی پٹی کا حامل یہ شہر اپنے متنوع اور لذیذ سی فوڈ کے لیے مشہور ہے۔ ایک مقامی ریستوران کے شیف کا کہنا تھا کہ پورے ملک سے سیاح سی فوڈ سے لطف اندوز ہونے کے لیے یانگجیانگ آتے ہیں۔ یہ فیسٹیول ملک بھر میں ہمارے سی فوڈ کی مصنوعات کو فروغ دینے کا بہت اچھا ذریعہ ہے اور یہ ایک بہت خوشی کی بات ہے۔ بحیرہ جنوبی چین میں ماہی گیری پر پابندی اس سال 1 مئی سے 16 اگست تک جاری رہی۔ ملک بھر میں ماہی گیری پر پابندی جو 1995 سے نافذ ہے، اس کا مقصد سمندری ماحول اور ماہی گیری کے وسائل کا تحفظ کرنا ہے۔ نینگشے ہوئی خود اختیار علاقے میں مختلف نسلی گروہوں کے درمیان اتحاد نے نئی مثال قائم کر دی۔ اتحاد کو زندگی کے تمام شعبوں کے لوگوں کی کوششوں سے نمایاں طور پہ بڑھایا گیا ہے۔ شمال مغربی چین کے نینگشا ہوئی خود اختیار علاقے میں مختلف نسلی گروہوں کے درمیان اتحاد کو زندگی کے تمام شعبوں کے لوگوں کی کوششوں سے نمایاں طور پر بڑھایا گیا ہے۔ نینگشیا ایک کثیر نسلی علاقہ ہے جس میں ہان، ہوئی، مانچو، تبتی اور منگول سمیت مختلف نسلی گروہوں کے لوگ آباد ہیں۔ ینچوان شہر میں گریٹ وال گارڈن رہائشی کمیونٹی ایک بڑی کثیر نسلی رہائشی آبادی ہے جس میں مختلف نسلی گروہوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 20,000 رہائشی آباد ہیں۔ کمیونٹی میں تعلیم، صحت، تفریح اور دیگر سروسز بہترین انداز میں کام کر رہی ہیں۔ مشرقی چین کے صوبے فوجیان کی جانب سے نینگشیا کو دی جانے والی 1-on-1 سپورٹ نے بھی خطے میں صنعتی، ثقافتی اور انسانی وسائل کی ترقی میں سہولت فراہم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ فوجیان نے اب تک نینگشیا میں 6,000 سے زیادہ کمپنیاں اور 400 سے زیادہ ورکشاپس قائم کرنے کے پروگراموں کو مالی اعانت فراہم کی ہے، جس سے تمام نسلی گروہوں کے تقریباً 2 لاکھ افراد کو مقامی طور پر روزگار حاصل ہوا ہے۔ نینگشیا سے 3,30,000 افراد کو فوجیان میں کام کرنے کے لیے بھی بھیجا گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق نینگشیا میں تمام نسلی گروہوں کے لوگوں کے ذریعہ معاش کو بہتر بنانے کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چانگشا میں مشینری فیکٹری میں پیداواری مٹیریل کے استعمال کی شرح میں بہتری آ گئی۔ پیداواری صلاحیت میں بہتری سے فیکٹری کے لیے ہر سال اربوں یوان کی بچت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے اے آئی ٹیکنالوجی پیداواری نظام کے اندر ذہین دماغ کے طور پہ کام کرتی ہے۔ اے آئی ٹیکنالوجی کے نفاذ نے وسطی چین کے صوبے ہینان کے دارالحکومت چانگشا میں ایک مشینری فیکٹری میں پیداواری میٹیریل کے استعمال کی شرح میں بہتری پیدا کی ہے، جس سے فیکٹری کے لیے ہر سال اربوں یوان کی بچت ہوتی ہے۔ فیکٹری جو پمپر ٹرکوں کی تیاری میں مہارت رکھتی ہے، اس نے اے آئی ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پیداواری عمل کے دوران میٹیریل کے استعمال میں بہتری لائی ہے۔ اے آئی ٹیکنالوجی پیداواری نظام کے اندر ایک ذہین دماغ کے طور پر کام کرتی ہے۔ کمپنی کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ یہ نظام نہ صرف پیداوار کے عمل کو بہتر بنا سکتا ہے بلکہ ہمارے آلات کو بھی انٹر کنیکٹ کر سکتا ہے۔ یہ ہماری تحقیق و ترقی، مینوفیکچرنگ اور سیلز اور مختلف ٹیموں کے درمیان تعاون کو بھی ممکن بناتا ہے۔ مصنوعی ذہانت کے نظام نے فیکٹری کے اندر کارکردگی اور لاگت کو مسلسل بہتر بنایا ہے، جس کی آٹومیشن کی شرح تقریباً 80% ہے۔ اس کے علاوہ مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کے استعمال سے پیداواری صلاحیت میں 123% اضافہ ہوا ہے اور اہلکاروں کی پیداواری صلاحیت میں 98% اضافہ ہوا ہے اور یونٹ مینوفیکچرنگ لاگت میں 29% کمی واقع ہوئی ہے۔ چین بھر میں آؤٹ ڈور کھیلوں اور سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہائیکنگ، ٹریکنگ اور دیگر کھیل مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ سویانگ کاؤنٹی میں 3.8 کلومیٹر طویل ٹریک پر خوبصورت قدرتی مناظر موجود ہیں۔
चीन भर में आउटडोर खेलों और सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है, जिससे सयाहत और मुल्की खपत में नुमायां इजाफा हुआ है। हाइकिंग, ट्रैकिंग और दीगर खेल काफ़ी मकबूल हो रहे हैं, जो चीन में हर उम्र के अफराद के अंदर दिलचस्पी पैदा कर रहे हैं। चीन के जनूब मगरबी सूबे ग्वाइजू की सुयांग काउंटी में 3.8 किलोमीटर तवील ट्रैक में खूबसूरत कुदरती मनाजिर मौजूद हैं। इस सरगर्मी ने इस मौसम गर्मा में काफ़ी मकबूलियत हासिल की है। जनूब मगरबी चीन की चुंगचिंग म्यूनसिपैलिटी में जहां काफ़ी दुश्वार गुजार इलाके भी मौजूद हैं, कैन्योनिंग ने आउटडोर स्पोर्ट्स के शौकीन अफराद में खासी मकबूलियत हासिल कर ली है। ये सरगर्मी मुश्किल लेकिन काफ़ी दिलचस्प है। दीगर इलाकों से भी अफराद इन सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए यहाँ आते हैं। तैराकी, राफ्टिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसे खेलों पर मुश्तमिल एक बैनुल-अक़वामी कैन्योनिंग मुकाबले ने जुलाई की आखिर में चुंगचिंग में बहुत से शुरका को राग़िब किया। लहासा शिगात से रेलवे ने अपने आगाज से अब तक बड़ी मनाजिल तय कर ली। रेलवे की 10वीं सालगिरह पर बुलेट ट्रेन में बहुत सी तफरीही सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। इब्तदाई तौर पर रेलवे लाइन पर बुलेट ट्रेन की बजाय सिर्फ आम ट्रेनें चलती थीं। जनूब मगरबी चीन के शीजांग खुद इख्तियार इलाके में लिहासा शिगात से रेलवे ने 10 साल कबल अपने आगाज़ के बाद से 14.29 मिलियन मुसाफिरों और 5.24 मिलियन टन सामान की नकलो हमल की है। रेलवे की 10वीं सालगिरह मनाने के लिए गुज़िश्ता जुम्मे के रोज़ बुलेट ट्रेन में बहुत सी तफरीही सरगर्मियों का इनेकाद किया गया, जिसमें लोकगीत, रक्स और मुख्तलिफ क्विज़ शामिल थे। 251 किलोमीटर तवील लाइन लिहासा, जो इलाकाई दारुल हुकूमत और शीजांग का सबसे बड़ा शहर है, इसे शिगात से शहर से जोड़ती है। ये दोनों मकामात सतह समंदर से 3500 मीटर से ज़्यादा की बुलंदी पर हैं। इसने दोनों शहरों के दरमियान सफ़र के वक्त को बस के ज़रिए 6 से 7 घंटे से कम करके एक आम ट्रेन के ज़रिए तकरीबन 2 घंटे कर दिया है, जिससे मकामी लोगों को बड़ी सहूलत फराहम हुई है। इब्तदाई तौर पर रेलवे लाइन पर सिर्फ आम ट्रेनें चलती थीं। अब बुलेट ट्रेन मुसाफिरों को तेज़ रफ्तार और ज़्यादा आरामदेह खिदमात फराहम कर रही हैं। बीजिंग में कौमी इदारा बराए शुमारियात की तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग दी। इस मौके पर उनका कहना था कि चीन नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके यकीनी बनाने के लिए अपनी तवज्जो मरकूज़ कर रहा है। जुलाई में मुल्क में शहरी सर्वे में बेरोज़गारी की शरह 5.2% थी। बीजिंग में कौमी इदारा बराए शुमारियात की तर्जुमान ने कहा कि चीन नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके को यकीनी बनाने के लिए अपनी तवज्जो मरकूज़ कर रहा है, क्योंकि ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए मुनासिब मुलाज़मतें फ़राहम करने का चैलेंज बदस्तूर मौजूद है। ये बात उन्होंने जुलाई की इक़्तिसादी तरक्की के बारे में एक प्रेस ब्रीफिंग में कही। आदाद शुमार से पता चलता है कि जुलाई में मुल्क में शहरी सर्वे में बेरोज़गारी की शरह 5.2% थी, जो जून के मुकाबले में 0.2% ज़्यादा है। आदाद शुमार के मुताबिक 31 बड़े शहरों में शहरी सर्वे में बेरोज़गारी की शरह 5.3% रही, जो गुज़िश्ता माह के मुकाबले में 0.4% ज़्यादा है। तर्जुमान ने शहरी बेरोज़गारी में सीजनल इजाफे को बुनियादी तौर पर मुल्क गिर ग्रेजुएशन सीज़न से मंसूब किया, एक ऐसा वक्त जब नए ग्रेजुएट्स मुलाजमत के लिए मार्केट में आते हैं। काशगर वस्ती एशिया और जनूबी एशिया कमोडिटी मेला सिंकियांग के शहर काशगर में शुरू हुआ। मेले का उन्वान सिल्क रोड की शान शौकत और काशगर में कारोबारी इज्तिमा है। नुमाइश में 158 गैर मुल्की कंपनियां और 550 मुल्की कंपनियां शिरकत कर रही हैं। हाल ही में 14वां काशगर वस्ती एशिया और जनूबी एशिया कमोडिटी मेला सिंकियांग के शहर काशगर में शुरू हुआ। मेले का उन्वान है सिल्क रोड की शान शौकत और काशगर में कारोबारी इज्तिमा। इस साल के काशगर मेले का कुल नुमाइशी रकबा तकरीबन 40,000 मुरबा मीटर है। नुमाइश में 35 ममालिक और खित्तों से 158 गैर मुल्की कंपनियां और 550 मुल्की कंपनियां शिरकत कर रही हैं। कमोडिटी मेले में मुतअद्दिद सनतों का इहाता किया गया है, जैसे डिजिटल और हाई टेक नुमाइश का जोन, एरोस्पेस इंफॉर्मेशन और नई तवानाई का नुमाइशी जोन, टेक्सटाइल, सकाफती सयाहत की मसनूआत और बैरूनी साजो सामान की मसनूआत का नुमाइशी जोन, ज़रई मसनूआत, तामीराती मटेरियल और घरेलू फर्नीचर और ऑटोमोबाइल के नुमाइशी जोन शामिल हैं। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। बीजिंग में ग्रीन एरिया और पार्क्स को बढ़ाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। शहर के इर्द गिर्द पार्क्स बनाकर हज़ारों हेक्टेयर रकबे पर हरियाली का इजाफा किया गया है।
मंसूबे के तहत जंगलात की कवरेज की शरह को 45% से ज़्यादा तक बढ़ाया जाएगा। बीजिंग में गुज़श्ता दहाई से आवाम के लिए ग्रीन एरिया और पार्क्स को बढ़ाने के लिए बेइंतहा कोशिशें हो रही हैं और शहर के इर्द गिर्द पार्क्स बनाकर हज़ारों हेक्टेयर रकबे पर हरियाली का इजाफा किया गया है। ये तसव्वुर बीजिंग गार्डन सिटी प्लान 2023-2035 का है, जिसमें इंसान और फितरत के माबैन हम आहंगी के जरिए जदीदकारी को आगे बढ़ाना और गार्डन सिटी के लिए आला मयार की तरक्की को अपनाना शामिल है। मंसूबे के अहम अहदाफ में 2035 तक शहरी इलाके में जंगलात की कवरेज की शरह को 45% से ज़्यादा तक बढ़ाना, 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा काबिल काश्त ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़, 500 किलोमीटर तवील पानी और ग्रीन बेल्ट का क़याम और तफरीही मकामात में पार्क्स को बढ़ाना शामिल है। बीजिंग म्यूनिसिपल फॉरेस्ट्री एंड पार्क्स ब्यूरो की एक ओहदेदार के मुताबिक उनके इदारे ने गार्डन सिटी की तामीर के आला सतही डिज़ाइन को न सिर्फ वज़ा किया बल्कि बेहतर भी बनाया है और इसके फ्रेमवर्क और अहदाफ की वजाहत की है। इस साल इदारा बीजिंग में माहौलियाती रकबे को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए 200 हेक्टेयर सब्ज़ जगह का इजाफा करेगा। तकरीबन 667 हेक्टेयर अराजी पर जंगलात लगाए जाएंगे, 15 नए तफरीही पार्क्स बनाए जाएंगे और 50 छोटे पार्क्स और सब्ज़ जगहों की तामीर की जाएगी। गार्डन सिटी की तामीर में सबसे अहम मसला इंज़माम का है, यानी रिहायशी जगह और पार्क्स को कैसे मिलाया जाए, जिसके लिए शहर के तमाम महकमों को आपस में कोऑर्डिनेशन करना होता है। गार्डन सिटी की तर्ज पर तामीर बीजिंग की शनाख्त का लाजमी जुज़्व है और इसीलिए कोशिश की जाती है कि सब्ज़े को बढ़ाने के लिए दस्तयाब तमाम ज़मीन को इस्तेमाल में लाया जाए। इस सिलसिले में छोटे पार्क्स खाली ज़मीन को सब्ज़े में बदलने के लिए मदद करते हैं और घर से पार्क तक का फासला बहुत कम हो जाता है। गुज़श्ता चंद सालों में रिहाइश के लिए मखसूस इलाकों के इर्द गिर्द इस तरह के 600 से ज़्यादा छोटे पार्क्स और सब्ज़ मकामात बनाए गए हैं। पुरसकून मकामात से लेकर मुतहर्रिक कम्यूनिटी मराकज़ तक ये पार्क हरियाली और तफरीह के गैर मुतवक्के मज़ाहिर पेश करते हैं। 2012 से बीजिंग ने एक अहम शहरी हुक्मरानी के इक़दाम का आगाज़ किया है, जिससे 7000 हेक्टेयर से ज़्यादा सब्ज़ मकामात का इजाफा किया गया है। इनमें मुतअद्दिद शहरी तफरीही पार्क्स, मज़ाफ़ाती पार्क्स, छोटे पार्क्स और छोटे छोटे सब्ज़ मकामात शामिल हैं। इस इजाफे के नतीजे में फ़ीकस पार्क का रकबा 5.5 से बढ़कर 16.9 मुरब्बा मीटर हो गया है। बीजिंग अब 1000 से ज़ायद पार्क्स का शहर बन गया है, क्योंकि यहाँ 1065 पार्क्स पूरे शहर में मौजूद हैं। इसके साथ ही बीजिंग में जंगलात की कवरेज 44.9% तक पहुंच गई है, जबकि शहरी सब्ज कवरेज 49.8% की मुतासिर कुन सतह पर है। इसके अलावा 13 अजला में 128 नए जंगलाती फार्म कायम किए गए हैं, जो 1,82,700 हेक्टेयर जंगलाती ज़मीन पर मुश्तमिल हैं और इससे 24,000 रोज़गार के मौक़े पैदा हुए हैं। बीजिंग के माहौलियाती बेहतरी के इक़दामात से परिंदों के मस्कन के मयार में भी इजाफा हुआ है। आज शहर में परिंदों की 519 इक़साम मौजूद हैं, जो चीन के परिंदों की 1/3 से ज़्यादा इक़साम की नुमाइंदगी करती हैं और G20 दारुल हुकूमतों में बीजिंग का तनव्वु दूसरे नंबर पर है। इस्लामाबाद में चीन के ताउन से इलेक्ट्रिक बसें चलने लगी। मुकामी शहरी इस किस्म की ट्रांसपोर्ट को बहुत पसंद करते हैं। जदीद बसों के प्रोजेक्ट में 160 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। हाल ही में मेरे पीछे ऐसी ईवी बसों की बड़ी तादाद इस्लामाबाद में जा रही है। तो ऐसी ईवी बसों का फ़ायदा क्या है और ये जो हमारे सफ़र के लिए क्या सहूलियात फराहम कर सकती हैं, तो आइए हमारे साथ इस वीडियो में साथ साथ चलेंगे। जो मेंटेनेंस दिस इलेक्ट्रिक बसेस पाकिस्तान को कामयाबी के साथ हवाले किया गया है। इस्लामाबाद की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इलेक्ट्रिक बस को 2 रोज पर कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए तैनात कर रही है। मकामी शहरी इस किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बहुत पसंद करते हैं। ईवी बसेस का प्रोजेक्ट है, हमने इसकी एक फिजिबिलिटी स्टडी कराई थी आज से कोई 1.5 साल पहले। उसके मुताबिक हमने इस्लामाबाद की पॉपुलेशन को देखते हुए, लोगों के ट्रैवलिंग पैटर्न को देखते हुए 13 रूट्स आइडेंटिफाई किए थे। उन 13 रूट्स में हमने इस्लामाबाद के तमाम सेक्टर्स को भी कवर किया है और जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं उनको भी कवर किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमारा बरी इमाम का एरिया है, नेलोर का एरिया है, शाह लदित्ता का एरिया है, B17 है,
I-16 सेक्टर है, इन तमाम एरियाज़ को कवर करते हुए 13 रूट्स हमने प्लान किए थे। 160 बसेस इस प्रोजेक्ट में हैं टोटल, जिसमें से 100 के करीब हमारे पास आ चुकी हैं। इनिशियली हमने 2 रूट्स पे बसेस चलाई हैं। जून में जो फर्स्ट बैच आया था हमारे पास, वो 30 बसों का था। उन 30 बसेस के ऊपर हमने ड्राइवर्स की ट्रेनिंग कराई। 1 महीना मैंडेटरी ड्राइवर ट्रेनिंग है हमारी। तो ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद वो 30 बसें हमने 2 रूट्स पे चलाई हैं। उसमें एक रूट जो है वो नस्ट स्टेशन है G11 के पास, वहाँ से शुरू होकर पिम्स तक आता है, और दूसरा रूट पिम्स से शुरू होकर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी तक जाता है हमारा। इन 2 रूट्स के ऊपर हमने चला दी हैं। बाकी बसेस के ऊपर ड्राइवर ट्रेनिंग चल रही है। जैसे ड्राइवर ट्रेनिंग मुकम्मल होती है तो हम उसके ऊपर भी रूट्स चला देंगे। मज़ीद 6 रूट्स हम जल्दी इंशाल्लाह ऐड कर देंगे इसमें। इलेक्ट्रिक बसों के हमवार ऑपरेशन को यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद में CDA मुख्तलिफ सहूलियात फराहम कर रहा है। हमने इस ऑपरेशन को स्मूथ और कामयाब बनाने के लिए बड़ी डिटेल्ड स्टडी की है, और हमने उन्हीं रूट्स पे ये बसेस चलाने का प्लान किया हुआ है जिसके ऊपर राइडरशिप हमें प्रॉपर मिल सके। जो लोग डेली अपने घरों से स्कूल्स में, कॉलेजेस में या सरकारी दफातर में ट्रैवल करते हैं, उनकी ओरिजिन डेस्टिनेशन सर्वे किया गया और उसके मुताबिक हमने ये रूट प्लान किए हैं। और हमने ये भी देखा है कि जिस रूट पे भी हम बस चला रहे हैं वहाँ पे आपकी रोड प्रॉपर कंडीशन में हो। वहाँ पे अगर कोई देयर इज़ सम ब्रोकन पोर्शन ऑफ द रोड, उसको हमने रिपेयर किया है। कंप्लीट फैसिलिटी लोगों को दे रहे हैं, उसके लिए हमने बस स्टॉप्स भी बनाए हैं। हर रूट के ऊपर एक ख़ास डिस्टेंस के बाद स्टॉप्स बनाए हैं जहाँ जहाँ लोगों की आबादी ज़्यादा है या रश ज़्यादा है। तो हमने इसके लिए तमाम वो कोशिश की है जिसके लिए आवाम को भरपूर सहूलत मिल सके। हमने यहाँ पे जिना कन्वेंशन सेंटर जहाँ हम बैठे हुए हैं, इसकी एक एग्जिस्टिंग पार्किंग के अंदर हमने 6 चार्जिंग सेटअप लगाए हैं, और ये जो 6 चार्जर हैं सारे डुअल गन हैं। हम 12 बसेस चार्ज कर सकते हैं एट ए टाइम। तो ये जो हमारा 2 रूट्स का ऑपरेशन शुरू हुआ है, इसके लिए ये सफिशेंट है। बाकी जो मज़ीद बसेस चलानी है उसके लिए हमारा एक H9 में डेपो बन रहा है, जो विद इन अ मंथ टाइम, बल्कि उससे भी पहले कोशिश कर रहे हैं कि हम मुकम्मल कर लें। और वहाँ पे हम लगा रहे हैं 10 चार्जर, यानी कि 20 बसें एट ए टाइम वहाँ चार्ज हो सकेंगी। और हम जो 6 रूट्स की बसेस जो नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं वो वहाँ चार्ज करेंगे। और फाइनली हमारा जो मेन डेपो होगा वो 0 पॉइंट पे बनेगा। उस डेपो के अंदर हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी होगा, डाटा सेंटर भी होगा, वहाँ ड्राइवर रेस्ट एरिया, मॉस्क एंड ऑल दी बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं, नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ या एमिनिटीज़ जो हैं वो उसमें मौजूद होंगी। 8 बैटरीज हैं हर बस में, जिसकी ओवरऑल कैपेसिटी 282 किलोवाट आवर है। और हम इसको चार्ज करते हैं, इफ़ वी वंस चार्ज इट 100%, तो बड़े आराम से ये 225-30 किलोमीटर हमारी बस चल जाती है। हमारा ऑपरेशन सुबह 6 बजे शुरू होता है और रात 11 बजे तक चलता है। तो सुबह से रात 11 तक एक बस का जो रूट है उसमें 200 से 225 किलोमीटर उसकी माइलेज होती है या उसकी ट्रैवलिंग होती है, और वो एक चार्ज में ये पूरी कर जाती है। हम बस को 100% ड्रेन बैटरी को कभी भी नहीं करते, 70% बैटरी को यूटिलाइज़ करते हैं, और देन वी ब्रिंग बैक टू द चार्जिंग प्लेस, और हम उसकी दोबारा से चार्जिंग करते हैं। EV बसों का ऑपरेशन न सिर्फ इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहा है, बल्कि शहर की पायदार तरक्की में उनका अहम किरदार भी है। चीन में आज भी बीमारियों के लिए रवायती तरीका इलाज अपनाया जाता है। तबीब नब्ज पकड़ के मर्ज की नौयत को देखता और इलाज तजवीज़ करता है। चीनी कौम और नौजवान आज भी कदीम तरीके इलाज की अहमियत को समझते हैं। पेरिस ओलंपिक्स, द मिस्टीरियस ओरिएंटल पावर अपीयर्स अगेन। अच्छा, तो चीनी खिलाड़ी भी कपिंग करवाते हैं। वैसे इन दिनों मेरी कमर में भी काफ़ी दर्द रहता है, मुझे भी कपिंग थेरेपी ट्राई करनी चाहिए। अरे ये कौन सी जगह है? ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की दुनिया में खुशामदीद। मैं आपकी गाइड हूँ सदफ। थैंक यू सो मच सदफ आने के लिए। और यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें मैं देख रहा था, ये जड़ी बूटी इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये ऐसा है और ये जुकाम के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा अच्छा। और देखिए इस शहर में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ भी हैं जिनसे मेडिसिन बनाई जा सकती है। तो आप इस जगह को एक्सप्लोर करें।
जी सदफ साहिबा, यहाँ पे तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं और ये जो जगह है ये भी बहुत पीसफुल है। जी बिल्कुल, अभी हम ट्रेडिशनल चाइनीज डॉक्टर से मुलाकात करेंगे। ओ वाह, और फिर मैं उनको अपनी बैक एक के बारे में पूछूंगा। जी बिल्कुल, चले। या हेलो, 你好。 Hello， 你好，你好，请坐。 Doctor, I have some shoulder and lower back pain. 有多长时间了？ About 3 months. 受凉会加重吗？ Yeah, in the winter it's more severe. 啊，来，我给你号号脉。我给你开个中药处方。处方我给你开好了，现在正好是中国的3伏天儿，我带你去拔个罐去。Why not? 现在给你做的是走罐儿，拔罐儿是可以通经活络，然后驱寒止痛，能够有效的缓解你这个腰部的疼痛。5分钟啊。 अभी लोअर बैक पे ये कपिंग मैं करवा रहा हूँ और अभी मुझे महसूस 2-3 मिनट में ही हो चुका है कि जो मसल्स हैं बड़े अच्छे तरीके से वो मोमेंटम गेन करते हैं और आपकी ब्लड की सर्कुलेशन वो भी इससे बेहतर होती है। 你想体验一下正骨吗 ？OK， 来趴下，这个是推拿里面的揉法、滚法。Relax， OK 。रिजवान साहिब, आपको ये थेरेपी कैसी लगी? बहुत अच्छी सदफ साहिबा, आपका ये जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है और आपकी जो थेरेपी है ये बहुत कमाल की है। अभी कोई 5-7 मिनट मैंने ये थेरेपी की है और तकरीबन कोई 70-80% तक आई एम परफेक्टली फाइन। अच्छा, तो हम मेडिसिन की तरफ जाएं। ओह यस।这呢就是我今天给你开的中药处方里面的药物，这味药呢叫泡附片，这味药呢叫肉桂。Oh wow, this is cinnamon, very commonly used in Pakistan in our foods, sometimes in the green tea also, but it's very common spice. 啊，这味药呢它有止痛的作用。Yeah. 这个呢叫山茱萸，你可以尝一下。 Okay, can I try it? 怎么样？味道怎么样 ？A little sour but very good taste. Yeah. ओके जनाब, आज हमने ट्रेडिशनल चाइनीज़ क्लिनिक का दौरा किया और वहाँ पे कपिंग थेरेपी करवाई, उनकी मेडिसिन ली और काफ़ी जो बैक एक है उस पे मुझे बड़ा रिलीफ महसूस हो रहा है। और बात यह है जनाब कि हज़ारों साल की ये जो मेहनत है चीनी तिब की, उससे ये जो सारा थेरेपी है और ये जो मेडिसिन है वो निकल कर सामने आती है। और ख़ुसूसी तौर पे हम बात करेंगे कि चीनी कौम और चीनी यंगस्टर्स जो हैं वो इस तरीका इलाज को आज भी अपना रहे हैं और इससे बहुत यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। चीन लाओस रेलवे स्टेशन पर लोग बड़ी तादाद में सफ़र के लिए आते हैं। ट्रेन की कुर्सियां आरामदेह और सफ़र पुरसकून होता है। ट्रेन में खाना खाने के अलावा मोबाइल भी चार्ज किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जूसी और मुझे सारा कहते हैं और आज हम मौजूद हैं कुनमिंग रेलवे स्टेशन है। आज हम हाई स्पीड ट्रेन पे सफ़र करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, ये चीन लाओस रेलवे है। चले हम चलें। लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो जहां इस वक्त कतार में खड़ी हुई है इस ट्रेन में सफ़र करने के लिए, और इसमें सिर्फ चाइना ही नहीं लाओस के भी बहुत से लोग हैं जो इस ट्रेन के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर लगेज के लिए एक खास जगह भी है। सीट्स बहुत आरामदेह हैं।
हेडरेस्ट भी बहुत अच्छा है। और ये ट्रेन चल रही है ना, यूँ लग रहा है इट्स लेविटेटिंग, लाइक ऐसे हवा में तैर रही है। बहुत ही पुरसकून इसकी राइड है। और यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ कि ये चूँकि ट्रेन चीन से लाओस और लाओस से चीन आती है, तो यहाँ पर लाओस, चीनी ज़बान और अंग्रेज़ी में हिदायत दी गई हैं। और इसके साथ साथ एक और अच्छी बात भी ये है कि आप यहाँ पर बहुत इत्मीनान से अपना मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि सीट्स के नीचे आपको चार्जिंग पोर्ट भी दी गई है। चाइना लाओस रेलवे शिमाल में चीन के शहर खुनमिंग से शुरू होती है और जनूब में लाओस के वेंटियान तक जाती है। इसकी कुल लंबाई 1035 किलोमीटर है। 3 दिसंबर 2021 जब चीन और लाओस के रहनुमाओं ने ट्रेन के आगाज का हुक्म दिया तो चाइना लाओस रेलवे को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ये चाइना लाओस रेलवे है और इसका तमाम स्टाफ लाओस का है। आइए जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट इनके लिए क्या तब्दीलियां लेके आया है। हेलो, कैन यू प्लीज टेल अस दैट व्हाट इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद दिस रेलवे नेटवर्क, द होल चाइना लाओस रेलवे? From 2021, from I start working, I have learned a lot of experience about the customer service. Yeah, every day I meet a lot of customers, and it is very different. So you enjoy your work? Very enjoy. Okay. अगर ट्रेन पर प्यास लगे तो क्या करना चाहिए? देखें, ये बाथरूम बहुत साफ सुथरा है। आप ट्रेन से बाहर मंजर देखना चाहते हैं तो देखें, ये हमारा मंजर है। तो इस ट्रेन में मंजर इतना डार्क क्यों है? चाइना लाओस रेलवे पहाड़ों और दरियाओं से गुजरती है। इसकी तामीर इंतहाई मुश्किल थी। रेलवे लाइन के साथ रहने वाले कहते हैं कि चाइना लाओस रेलवे जब आसमान में नहीं होती तो ये जरूर किसी गार में होती है। आप इसे सिर्फ स्टेशन पर ही देख सकते हैं। मकामी लोगों की बातों से आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस लाइन पर कितने पुल और सुरंगें हैं। चाइना लाओस रेलवे न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान सामान की तरसील की तेज़ रफ्तार सहूलत फराहम करती है, बल्कि ये मुसाफिरों के लिए भी तेज़ रफ्तार, आरामदेह और पुरसकून सफ़र की सहूलत फराहम करती है। खुनमिंग से शिशुआनबन्ना तक आप सिर्फ 3 घंटे में पहुंच जाते हैं और वेंटियाने लाओस तक सिर्फ 9 घंटे में, जबकि इससे पहले आप खुनमिंग से लाओस तक 2 से 3 दिन में पहुंचते थे। 27 मार्च 2024 तक चाइना लाओस रेलवे पर बैनुल-अक़वामी मुसाफिर ट्रेन की तादाद 700 से तजावुज़ कर गई, जिससे 87 ममालिक और खित्तों से 1,80,000 मुसाफिरों ने सरहद पार सफ़र किया। ताज़ा सब्जियों से लदी चाइना लाओस रेलवे इंटरनेशनल कार्गो ट्रेन खुनमिंग स्टेशन से लाओस की तरफ रवाना होती है। तकरीबन 30 घंटे के बाद ये सब्जियां मकामी लोगों की मेज पर एक मजेदार पकवान की सूरत में पाई जाती हैं। रेलवे पटरियों का हार्ड कनेक्शन चीन और लाओस के लोगों के दरमियान हार्ट कनेक्शन को फरोग देता है। चाइना लाओस रेलवे को दोस्ती की नई शाहराह रेशम कहा जा सकता है और ये इस रेलवे पर लोगों के सफर को आसान बनाने, दोनों ममालिक के दरमियान सयाहत और दीगर सनतों की तरक्की को फरोग देने, इक्तिसादी और तजारती तबादलों को फरोग देने और मुश्तरका तौर पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की आला मयार की तामीर के लिए बहुत अहमियत रखता है। अब हम एक दूजे के साथ हैं, मेहनत की मजदूरों ने पसीना बहाया, तब जाके सालों में ये रास्ता बनाया। ये मंसूबा चीन के सदर मुमलिकत शी जिनपिंग के द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है और दोनों ममालिक के दरमियान मुफीद बाहमी ताउन की एक शानदार मिसाल है। आप भी चीन से लाओस जाना चाहते हैं या लाओस से चीन आना चाहते हैं तो अपना पासपोर्ट तैयार कीजिए और वीज़े के लिए अप्लाई कर दीजिए। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।